برطانیہ پر سب سے طویل عرصے حکمرانی کرنے والی ملکہ ایلزبتھ 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ملکہ برطانیہ کی وفات پر قومی پرچم سرنگوں ملک بھر میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ ملک بھر میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ کی صحت خراب ہونے پر شاہی خاندان اسکاٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہو گیا تھا۔ بکنگھم پیلس کے مطابق ملکہ کی موت پرسکون انداز میں بلمورل میں ہوئی۔ ملکہ کی ساری اولادیں بلمورل میں موجود ہیں، جہاں ملکہ کو ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ ملکہ ایلزبتھ کے پوتے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری بلمورل پہنچ چکے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات 10 روز بعد ویسٹ منسٹر میں سر انجام دی جائیں گی۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے چارلز بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ چارلز نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ پیاری والدہ کا انتقال خاندان کے تمام افراد کے لیے بڑا دکھ کا لمحہ ہے۔ جانتا ہوں کہ اس نقصان کو برطانیہ، دولت مشترکہ کے ممالک اور دنیا بھر میں شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ اہل خانہ اور انہیں یہ بات قوت دیتی ہے کہ ملکہ کو ہر ایک سے عزت اور گہری محبت ملے۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کا ملکہ ایلزبتھ کو خراج تحسین ملکہ کے انتقال کو دنیا بھر کے لیے بڑا صدمہ قرار دے دیا۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مختصر خطاب میں کہا، برطانیہ کے شہریوں کو مل کر نئے بادشاہ کی حمایت کرنی چاہیے۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ملکہ کی وفات کے سوگ میں برطانیہ دیگر دولت مشترکہ ممالک کے ساتھ ہے۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا، ملکہ کو تاریخ میں سنہری حروف سے یاد رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بولے، ملکہ ایلزبتھ دوم ایک عہد کی نمائندہ ہیں۔ ملکہ ایلزبتھ ہمدردی اور امید کا روپ تھیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ملکہ کی وفات سے ایک عظیم روایت اور دور کا خاتمہ ہو گیا۔ ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم نے اپنے 70 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کا 2 مرتبہ دورہ کیا۔ ملکہ نے اپنے شوہر شہزادہ فلپ کے ہمراہ پہلی مرتبہ 1 سے 16 فروری 1961 کو کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور شمالی علاقوں کا دورہ کیا۔ کراچی پہنچنے پر ان کا استقبال صدر ایوب خان نے گرم جوشی کے ساتھ کیا۔ آزادی پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر ملکہ برطانیہ اکتوبر 1997 میں پاکستان کے دوسرے دورے پر آئیں۔ اسلام آباد میں پارلیمان سے خطاب میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کو باہمی اختلافات ختم کرنے پر زور دیا۔ اس دوران وہ فیصل مسجد بھی گئیں، جہاں انہوں نے احتراماً سر پر سکارف اوڑھا اور جوتے اتار کر اندر گئیں۔ اپنے 6 روزہ دورے میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو اور صدر فاروق لغاری سے ملاقاتیں بھی کیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریز 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے UN سیکرٹری جنرل کا استقبال کیا۔ انٹونیو گوتریز سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا، وہ دورہ پاکستان میں عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر امداد کی اپیل کریں گے۔ پاکستان کا 1/3 حصہ متاثر ہے۔ عالمی برادری کو مشکل میں گھرے افراد سے اظہار یکجہتی کرنا ہوگا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹ رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیلابی صورتحال کا ذکر کریں گے۔ بھان سعید آباد شہر سے ملکہ انڈس لنک کینال بند پر پڑنے والے شگافوں کے نتیجے میں یونین کاؤنسل کے 50 سے زائد دیہات متاثر، جبکہ سیلابی پانی 2 یونین کاؤنسلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ریاض ناریجو۔ بھان سعید آباد شہر سے ملکہ انڈس لنک کینال بند کو جو 2 مختلف مقامات پر شگاف ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں پانی تیز رفتاری کے ساتھ آبادیوں کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 50 دیہات کو پانی نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ اس کے ساتھ پانی نے آگے سفر کرتے ہوئے یونین کونسل شیخ اور یونین کونسل بمبا میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ ان دونوں یونین کونسلوں کے بھی 20 دیہات، ٹوٹل 70 سے زیادہ دیہات ایسے ہیں جو پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ان دیہات میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ مکانوں کے گرنے کے ساتھ ساتھ کاشت کا ہوا ہے۔ کپاس کی کاشت تقریباً 30-35 ہزار ایکڑوں پر کھڑی کاشت تھی، وہ بالکل ڈوب چکی ہے۔ اس کے ساتھ
जो मिर्च थे, टमाटर और प्याज थे, वो भी इसमें डूब चुके हैं। शहर की बात करें तो शहर से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। नौशहर फिरोज में बासर अफराद की जानिब से गैर कानूनी कट लगाने की वजह से सैलाबी पानी ने 500 से जायद गाँव को डुबोकर रख दिया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा। जी, बासर अफराद की जानिब से जो बागात हैं और ज़मीनों का जो पानी है वो नहरों में मुंतकिल करने की वजह से नहरों को मुख्तलिफ मकामात पर कट लगे हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो सैलाबी रेले की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये सैलाबी रेला कंडियारो तहसील, बिरिया तहसील से होता हुआ नौशहर फिरोज म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 15 और 16 के तमाम जो गांव हैं वो इस बारिशी रेले की वजह से मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब आ गए हैं। मुतासिरीन का कहना है कि 500 से ज़्यादा जो गांव हैं वो इस रेले की वजह से ज़ेर आब आ गए हैं और 1 लाख से ज़ायद जो मुतासिरीन हुए हैं शहरी मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि सैलाबी रेले को जो है आगे की तरफ जो रास्ता दिया जाए ताकि उनका मज़ीद नुकसान जो है वो कम हो सके। जी, पडीदन के सैकड़ों देहात में कई फुट सैलाबी पानी मौजूद है, जिसके बाइस मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब मुतासरीन निकासी आब और हुकूमती इमदाद और अद्वियात के मुंतज़िर हैं। तफसील बता रहे हैं गुलाम हैदर आकाश। हालिया बारिशों और सैलाब से कई मकान, कई घर, कई मकानात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। अब भी सैकड़ों देहात ऐसे हैं जहां पर कई फुट पानी जमा है, जिससे न तो घर बचे न ही फसलें। सैकड़ों लोग अब भी बेघर हो चुके हैं, जो कि रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो चुके हैं या अपनी मदद आप अपने मवेशियों के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल है। बारिशों को कई रोज़ गुजर चुके हैं, न कि इनके इलाकों से पानी निकल सका है, न ही इनको को अपने घरों के लिए कोई इमदाद मिल सकी है। इन मुतासिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से ताल न टेंट मिल सके हैं, न कोई इन्हें राशन दिया गया है, न कोई दीगर इमदाद दी गई है। वो आज भी बेयार मददगार अपनी मदद आप कहते हैं ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके बच्चे आज भी निवाले को तरस रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं। टंडो मोहम्मद खान के बेशतर देहात 23 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पानी में डूबे हुए हैं। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने से इलाका मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। तफसील बताएंगे मुरसल रिजवी। ज़िला टंडो खान के बेशतर देहातों का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता होने के बाइस सैकड़ों सैलाब मुतासरीन भी पानी में घिरे हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमारे इलाकों में 23 रोज़ गुजर जाने के बावजूद सैलाबी पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से हमारी मामलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। हमारी खड़ी फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं और इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से हमारे देहातों में भी मुख्तलिफ अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारे देहातों से पानी निकाला जाए। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सूरत हाल को देखते हुए IG पुलिस बलूचिस्तान ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी सामान तकसीम किया। इसकी तफसील आबिद बलूच से। जी, सैलाब से मुतासर इलाकों में 30 रोज़ गुजरने के बाद भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और सैलाब से मुतासरा इलाकों मंजूशोरी, रब्बी, बाबाकोट, खरोसवा, रसूलाबाद, मीरासन, छत्तर के समेत दीगर इलाकों में अद्वियात, पीने के साफ़ पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। जबकि शदीद गर्मी और हब्स ने जो है सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर पनाह लेने वाले ख़वातीन और मासूम बच्चों की मुश्किल बढ़ा दी। जबकि IG बलूचिस्तान पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने जो है सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर पनाह लेने वाले सैलाब मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान तकसीम किया गया। जी, उबाड़ों में बारिश ने मेहनत कश किसान का कुछ भी ना छोड़ा। न फसलें बच सकी, न मकान रहा, खाद, बीज और ज़मीन का ठेका भी गले पड़ गया और मकरूज हो गया। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम। हालिया होने वाली बारिश ने जहां शहरी इलाकों को शदीद मुतासर किया है, वहीं दही इलाकों में भी बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही मची हुई है। जबकि लोगों के, किसानों के घर गिर गए हैं, छतें, घर, मकानात रहने के काबिल नहीं हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, मकरूज़ हो गए हैं।
हमारी 10 एकड़ कपास थी, बारिश की वजह से वो अभी तक उसमें पानी है और वो ख़त्म हो चुकी है। हमारी कपास भी तबाह हो चुकी है और हमारे ये घर हैं ये गिर चुके हैं, किन जगहों की छतें गिर गए हैं। इनका कहना है कि इस वक्त किसी किस्म की कोई हुकूमती इमदाद इन्हें मुयस्सर नहीं है। और अभी आपको बताएं, कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। कराची में डेंगू से पहली मौत रिपोर्ट हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू से इंतकाल करने वाले शख्स की उम्र 19 साल थी। 24 घंटों के दौरान शहर में 104 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। सितंबर के 7 रोज़ में 622 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान में आटे का बहरान जारी है। इस हवाले से सूरत-ए-हाल और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक बताएंगे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में गंदम और आटे का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि मार्केट में जो दस्तयाब आटा है उसकी कीमत तकरीबन 2600 रुपये 20 किलो के थैले पर पहुँच गई, जो पहले 1700 से 1800 में दस्तयाब था। इस महंगाई के हवाले से आवाम दुहाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब महकमा खुराक का कहना है कि अभी तक जो उनके पास गंदम का स्टॉक था उन्होंने मार्केट में देना शुरू कर दिया है। जबकि फ्लावर मिल एसोसिएशन के अहदेदार उन्होंने दावा किया है कि अभी तक जो सरकारी गंदम है उन्हें फराहम नहीं की जा रही, इसलिए आटे की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकाम का ये कहना है कि पंजाब और सिंध के रास्ते जो हैं वो बंद हैं इस वक्त बारिशों और सैलाब की वजह से, इसलिए वहाँ से भी सप्लाई नहीं आ रही। इसके अलावा पास्को से जो गंदम खरीदारी की गई थी 2 लाख बोरी बलूचिस्तान के कोटे के हवाले से, वो भी अभी तक नहीं पहुँची। जैसे ही ये तमाम जो सप्लाई है ये शुरू हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। पेशावर के मौसम का अहवाल बताएं आपको, जहां पर मौसम गर्म और खुश्क है। हब्स के बायस गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है। सूबे में बारिशों का नया सिलसिला आइंदा पीर से शुरू होने का इम्कान है। तफसील दानियाल अजीज़ से। पेशावर में गर्मी का लहर बरकरार है। पेशावर में गुज़िश्ता कई दिनों से हब्स की कैफियत रहती है। रात को भी और दिन को भी हब्स के बायस लोगों को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तब इस वक्त पेशावर में दर्ज हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 और 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त पेशावर में मतलब जुज़वी तौर पर आबर आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तम बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड की गई है। और इस तरह बारिश का जो नया स्पेल है वो आइंदा पीर के रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जो शख्स फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान पर लॉन्च किया गया है, इक़्तिदार में हो तो तबाही मचाए, बाहर हो तो तबाही मचाए, इदारों पर और पाकिस्तान की इक़्तिदार पर हमलावर हो, इससे बड़ा ख़तरनाक और कौन हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक। जो शख्स फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान पे लॉन्च किया गया हो, पाकिस्तान में इक़्तिदार में हो तो तबाही मचाए, पाकिस्तान इक़्तिदार से बाहर आए तो तबाही मचाए, इदारों पर हमला आवर हो, पाकिस्तान की इक़्तिदार पे हमला आवर हो, उससे बड़ा ख़तरनाक और कौन हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला इस ख़तरनाक को हम घर तक पहुंचा के आएंगे। ये धमकियां वो किसी और को दे। फ़र्द जुर्म आइद नहीं होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ॉरेन फंडिंग में भी ये कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत है। तौहीन अदालत में भी कसूरवार है, सबूत है, सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी इस पर तोशा खाना वाला जो मुकदमा है कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए ये बच के ना निकल जाए क्योंकि ये सियासतदान बनता है, ये सियासतदान नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे कि अपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है कि असम्बली जाओ और मामलात हल करो। हर किसी से बात के लिए तैयार है, लेकिन चोरों से बात नहीं होगी। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर लें, कौम फैसला कर चुकी है। जब भी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, फतह PTI की होगी। मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज माशाअल्लाह कौम ऐसी बेदारी आई है और शऊर आया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर गैर मुल्की मुदाखलत का इल्ज़ाम है तो कौमी सलामती कमेटी की तहकीकात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा, यूट्यूब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यूट्यूब पर पाबंदी लगाना ऐसा ही है जैसे तोप से मच्छर मारना। आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए अभी भी? नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन इंटरफेरेंस की एलिगेशन है तो मैंने तो ऑन पेपर मैंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि इसकी तहकीकात। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, तहकीकात करके कहा था तो मैं मुतमईन हो जाऊँगा, मगर ये तहकीकात ओपन हो जाए, पब्लिक हो जाए। ज़माना बदल रहा है कि अंदर ये नहीं हो सकता कि तुम इस चीज़ को बंद कर दो, जैसे यूट्यूब बंद कर दिया गया। इट कांट हैपन। इस ज़माने में ये टूल्स जो आगे आए हैं, ट्विटर, फेसबुक, मिसाल के तौर पर यूट्यूब, इसको पुरानी तरकीबों से डंडा मारकर रोकना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक तोप है और मच्छरों का यलगार हो, आप कहें भाई हमारे पास तो तोप ही है, हम तोप करके चंद। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दिया। यूट्यूब पर पाबंदी का मतलब यह है कि तोप से मच्छर मार रहे हैं आप। हाँ, तो और ये रुकता नहीं है। आईसीसी मैच रेफरी ने लेवल 1 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली और अफगानिस्तान के फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सनसनीखेज मैच में आसिफ अली ने फरीद अहमद को छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर फरीद अहमद ने आसिफ अली की विकेट हासिल की, जिसके बाद वो जोश में आसिफ अली के करीब आए और कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जिस पर आसिफ अली ने उन्हें बैट दिखाया। मैच रेफरी ने लेवल 1 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दोनों क्रिकेटर्स पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद कर दिया।